Bismillahirrahmanirrahim. In this video I will show you how to solve this problem which is problem 4-7, and in which we are asked to draw the shear and moment diagrams for the beams shown in the figure. So alright, we this is the beam with the 9 meter in length, and this is the JVL with 20 kilonewton per meter, the maximum force. So we have to draw the shear and moment diagram for this figure. So I will start its solution without wasting any time. So let me draw a free body diagram of this figure. Like if I draw the free body diagram like this, so here we have hinge, so we will be having two reactions like this one and this one. So this will be our AY and this will be X. Similarly here we have one reaction, this one, and this is our JVL. (20 kilonewton per meter). Alright. So if I call this as A and this as B, this will be my BY and this will be my AY and this will be AX. So before going towards the bending moment and shear force diagram, I will have to find out these support reactions. So for support reactions, what I will do, first I will convert this JVL into a point load. So we all know that this length is 9 meter, which is already given. This is 9 meter. So if I convert this force into a point load, then what I have to do, I have to multiply this force with the area of the triangle. So what is the force? That is 20 into 9 into 1/2. So this will be the point load. So if I solve this, 20 into 9, it will be 10 into 9, so this is 90 kilonewton. Now this 90 kilonewton will act here. 90 kilonewton. This 90 kilonewton 3 meter from here and remaining 6 meters from here. Now what I have to do, again the old procedure, I have to find out the reactions by the three equations which we have, that is sigma fx is equal to 0, sigma fy is equal to 0, and sigma moment is equal to 0. So for sigma fx is equal to 0, this ax will be 0 because there is no any horizontal force here. So ax will be directly 0. So without solving or without writing, I am directly equating it equal to 0. Now we have ay and by, like two unknowns here. So ay, for your ease, I am explaining it in Urdu. तो ए वाई हमारा क्या होगा और बी वाई क्या होगा. सो ए वाई और बी वाई के लिए हम अगेन सिग्मा पहले एफ सिग्मा मूवमेंट ज़ीरो कर देते हैं. अबाउट लेट से मैं कहता हूँ जी मैं ए पे ज़ीरो करता हूँ. सो एम ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो करके, तो अब
इस पॉइंट पे मैं मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे तो होगा क्या तो इस पॉइंट पे अब मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स जिस पॉइंट से पास कर रही हो उसका मूवमेंट पे इफ़ेक्ट कोई नहीं होता। तो हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक है ये 90 किलो न्यूटन और इसी तरह एक ये बी वाई होगी, ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 90, अब मैं एज्यूम करता हूँ कि जी क्लॉकवाइज इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस इज़ क्लॉकवाइज एंड आई एज्यूम दिस इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 90 इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। सो 90 इंटू ये रिमेनिंग कितना डिस्टेंस है, दैट इज़ 6 मीटर। सो 90 इंटू 6 मीटर एंड सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, बी वाई, फिर ये दूसरी फोर्स है हमारे पास बी वाई। सो बी वाई इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव बी वाई इंटू ये कितना डिस्टेंस है टोटल, दैट इज़ 9 मीटर। सो बी वाई इंटू 9 इक्वल्स टू 0। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आएगा मेरे पास, 9 बी वाई इज इक्वल टू 90 इंटू 6। सो 9 और इसको अगर हम 10 कर लें तो 9 इंटू 10 90, ठीक है। यानी कि 9 इधर नीचे आके डिवाइड हो गया। सो बी वाई इज इक्वल टू 10 इंटू 6 60 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हमारे पास बी वाई आ गया, दैट इज़ 60 किलो न्यूटन। अब हमें पता है कि जब मैं अगर सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 इसको करूं तो मेरे पास तीन फोर्सेज हैं टोटल, ए वाई बी वाई और 90 किलो न्यूटन। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारा ए वाई जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 30, तो तब जाके ये हमारी जो फिगर है ये बैलेंस होगी। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, जो एंड रिएक्शंस थी वो निकाल ली हैं, ठीक है। अब मैं एक और फिगर ड्रा करता हूँ जो थोड़ी सी नीट हो, जिस पे सिर्फ एंड रिएक्शंस हो, जहाँ पे मैं 30 लिख लेता हूँ। इसी तरह यहाँ पे मैं इसको 60 कर देता हूँ और दूसरा मेरे पास GVL है, दैट इज़ 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अब इसके अगेंस्ट मैंने क्या करना है, मैंने shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। तो shear फोर्स के लिए फिर इसी के नीचे आके मैं एक इसी तरह यहाँ पे आके तो यहाँ पे ये एक लाइन में ड्रा करता हूँ। ये shear फोर्स के लिए मैं इधर V लिख लेता हूँ, ठीक है। shear फोर्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं और एक में मोमेंट के लिए। तो ये दो फिगर्स मैंने ड्रॉ कर ली, shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए। ऑल राइट अब हम shear फोर्स कैसे ड्रॉ करेंगे कि ऑल राइट अब shear फोर्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि इधर मैंने लिख लिया V किलो न्यूटन। सिमिलरली मोमेंट, जो मेरा मोमेंट की यूनिट है किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे M लिख लिया। अब जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया था कि हम देखते हैं कि यहाँ से जो हमारी shear फोर्स अगर अपवर्ड है पिछले लेक्चर में, तो हमारा जो shear फोर्स है वो भी पॉजिटिव होगा। अगर नीचे से जो फोर्स है अपवर्ड है तो shear फोर्स पॉजिटिव होगा। तो व्हाट डज दिस मीन कि 30 किलो न्यूटन है, 30 किलो न्यूटन और इसी तरह 60 किलो न्यूटन, तो यहाँ से मेरा जो shear फोर्स है वो भी ऊपर जाएगा, अपवर्ड 30। सो लेट्स से दिस इज 30। ऑल राइट अब क्या होगा कि हमें पता है कि यहाँ हमारे पास क्या है, UDL है, ठीक है। ये सॉरी GVL है जो कि डाउनवर्ड है सारे का सारा, ठीक है। अब ये GVL है और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है,
तो इट मीन्स कि यहाँ से जो अब हमारी shear फोर्स बनेगी वो नीचे की तरफ आएगी। और मैंने आपको बताई थी एक बात कि जब हमारे पास यूडीएल हो तो shear फोर्स हमारे पास फर्स्ट डिग्री बनती है कर्व, और इसी तरह जो मूवमेंट है वो हमारे पास सेकंड डिग्री बनती है। और इसी तरह अगर हमारे पास GVL हो, ग्रेजुअली वेरिएंट लोड हो, यानी कि ये वाला केस हो, तो shear फोर्स की जो हमारी कर्व है वो सेकंड डिग्री कर्व बनेगी, ठीक है। और जो मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की जो कर्व है वो थर्ड डिग्री कर्व बनेगी, ठीक है। तो ये केसेस आपको पता होने चाहिए। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये वाली कंडीशन प्रिवेल्स कर रही है, तो हमारे पास जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, और हमारा आप कह लें कि जो टोटल लेंथ है इस सेगमेंट की वो है 9 मीटर, और यहाँ से अपवर्ड लग रहा है कितना, 60 किलो न्यूटन। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे मैं आऊँगा, ये जो मतलब सेकंड डिग्री मेरी कर्व बनेगी वो कैसे बनेगी कि यहाँ से ये ऐसे और इधर आ जाएगी। अब इधर क्यों आए, अब ये एक पॉइंट है जहाँ से ये जो आपकी हमारी shear फोर्स है ये इसको क्रॉस करके नीचे आ रही है। अब हमें पता है कि ये जो shear फोर्स है यहाँ से ऊपर अपवर्ड कितनी लगी है, 60। तो ऑटोमेटिकली ये जो 60 है ये इसको कवर करके तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो इट मीन्स कि दिस इज़ 60 किलो न्यूटन, ठीक है। ये 60 वाली है तो ये अब ऊपर जाके 0। अब मैंने पिछले लेक्चर में अभी आपको बताया था कि ये जो हमारी फोर्सेस हैं ये बीम के दोनों साइड्स पे 0 0 होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पे ख़त्म हो गया। अब हमें ये नहीं पता, अब ये वाला रीजन हमारा पॉजिटिव है, ये वाला रीजन हमारा नेगेटिव है। अब जो आपका क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता ये कहाँ से इसने कट किया, कहाँ से जाके मूवमेंट नेगेटिव, shear फोर्स नेगेटिव हुई, तो वो आपको मैं आंसर जो है आगे देता हूँ, ठीक है। और लेकिन उससे पहले ये है कि हम मूवमेंट डायग्राम जो है इसकी ड्रा कर लेते हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग इसकी जो कैलकुलेशन है, जो इसका मैग्नीट्यूड है मूवमेंट का, और ये डिस्टेंस कितना है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हमारा अब मूवमेंट का हमें नहीं आइडिया कि हमारा मूवमेंट यहाँ पे कितना है। तो आइडिया लगाने के लिए आप देख लें कि यहाँ पे मूवमेंट हमारा जो है कोई भी नहीं है, मूवमेंट इज़ 0। तो ओबियसली ये कर्व यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब मैंने एक और भी चीज़ आपको बताई थी कि जहाँ पे shear फोर्स मैक्सिमम होगा वहाँ पे मूवमेंट 0 होगा, और जहाँ पे shear फोर्स मिनिमम है 0, तो यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट है वो क्या है, मैक्सिमम होगा। तो इट मीन्स के ये वाला रीजन हमारा मूवमेंट का जो है पॉजिटिव है, तो ये मूवमेंट 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक। अब इट मीन्स के ये देखें आप, यहाँ पे shear फोर्स 0 जबकि मूवमेंट जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। shear फोर्स 0, मूवमेंट मैक्सिमम। अब यहाँ से नेगेटिव वाला रीजन स्टार्ट हो रहा है, तो फिर मूवमेंट यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। मूवमेंट यहाँ से नीचे आके और ये इस तरह से लाइन जो है मीट कर जाएगी। तो अब हमें पता है कि ऊपर वाला जो है पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे जो चीज़ फाइंड आउट करने वाली है, एक तो ये कि इस रीजन पे shear फोर्स 0 है, ठीक है। और दूसरा एक हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो डिस्टेंस है x, ये कितना है। सेकेंडली यहाँ पे मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। यहाँ पे तो ओबियसली 0 0 है ना, ये भी लाइन 0 0 की है, ठीक है। ये मूवमेंट तो ये तो हमें पता है कि ये 0 0 है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट कितना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारी जो हैं ये फाइंड आउट करने वाली हैं। दैट इज़ x यानी कि डिस्टेंस जहाँ से ये मूवमेंट इसको ये जो है नेगेटिव अपना जो shear फोर्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, और इसी तरह उस
पॉइंट पे हमारा जो मोमेंट है वो कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी जो फिगर है इसका एक पोर्शन जो है ना किसी भी एक एक्स डिस्टेंस पे इसको एज्यूम करते हैं। सो लेट अस एज्यूम करते हैं जी ये हमारा यहाँ से 30 किलो न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है। और इसी तरह ये हमने किसी भी एक पॉइंट पे इसको कट कर लिया एट अ डिस्टेंस x, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो है दिस इज x, ठीक है। हमें इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो टोटल है दैट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये भी ये फिर कितना होगा कि 20 मल्टीप्लाई बाय x और डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। यानी कि ये जो 20 है ये वाला 20, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लास में भी बताया था कि ये कैसे अगर x पे हम कट करेंगे तो ये फोर्स की ये मैग्नीट्यूड हमारे पास कैसे आएगा, ठीक है। सो 20 मल्टीप्लाई बाय x बाय 9, यानी कि टोटल लेंथ 9 थी, 9 हमने एक एट अ डिस्टेंस x इसको कट कर लिया तो 20 इंटू एक्स बाई 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइडेड बाय 9, टोटल लेंथ कितनी है 9 है। तो यहाँ पे ये हमारा मैग्नीट्यूड है। अब हमने यहाँ से अगर इसको कट कर लिया है तो ओबियसली यहाँ पे हमारे पास शीयर फोर्स भी होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ मूवमेंट भी होगा, यानी कि इंटरनल फोर्सेस, यानी कि ये वो इंटरनल फोर्सेस है जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो अब हमने यहाँ पे ये जो शीयर फोर्स और ये मोमेंट है ये कैलकुलेट करना है। तो ये जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास x भी आ जाएगा और इसी तरह जो मोमेंट है वो भी आ जाएगा, ठीक है। पहले x आएगा, फिर उसके बाद मोमेंट के अंदर हम जो है x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पता है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट हम सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 करते हैं, ठीक है। सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो एफ वाई को जब हमने 0 किया तो हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक है 30, एक है अपवर्ड 30 और फिर इसी तरह डाउनवर्ड है हमारे पास। अब ओबियसली हम यहाँ पे ये वाली जो मैक्सिमम लोड है इसको नहीं लेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड में और उसको फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। अब अगर इस लोड को इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था ये वाला, ठीक है। पॉइंट लोड को हमने ये जो कैलकुलेट करके 90 बनाया था, तो इधर ये जब हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कहीं इस जगह पे एक्ट करेगा, ठीक है। ये इस जगह पे पॉइंट लोड एक्ट करेगा, इधर होगा x बाय 6 सॉरी x बाय कितने डिस्टेंस पे ये यहाँ पे एक्ट करेगा, यानी कि 2/3 इस तरफ से होगा और 1/3 जो है हमारा वो दूसरी साइड से जिस तरफ से हमने कट किया है उस तरफ से होगा, ठीक है। सो 2/3 का क्या मतलब है कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है दिस विल बी x बाई 3 और यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है दिस विल बी 2x बाई 3। ये जो मोमेंट जहाँ पे हमारा ये जो फोर्स लग रही है ये चीज़, ठीक है। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो है दिस इज़ x बाई 3, दिस इज़ 2x बाई 3। सो x बाई 3 पे क्या होगा हमारा के 20 इंटू एक्स बाई 9 मल्टीप्लाई बाय कितना है जी टोटल लेंथ। एक तो 20x बाई 9, अब इसका मैग्नीट्यूड होगा ना, मैं अलग एक पेज पे अगर इसको करूं 20 इंटू एक्स बाई 9 ये तो आ गया उसका मैग्नीट्यूड, फिर 1/2 फार्मूले वाला और टोटल डिस्टेंस कितना है x, ठीक है। तो ये टोटल लोड है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 10,
ठीक है। सो 10x स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे x/9 भी है ना, सो 10/9 और x स्क्वायर ये वाला, ठीक है। तो ये 10/9 x स्क्वायर ये हो गया पॉइंट लोड, ठीक है। 10/9 x स्क्वायर ये हमारा ये पॉइंट लोड, और ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस x/3 यहाँ से और 2x/3 यहाँ से, ठीक है। ये पॉइंट लोड हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मेरे पास अपवर्ड फोर्स है 30, दूसरी डाउनवर्ड फोर्स है 10/9 और x स्क्वायर, और यही दो फोर्सेस हैं इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो यानी कि अगर मैं इसको x के लिए सॉल्व करूँ इन शॉर्ट, तो ये मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा। आप भी अगर इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें x के लिए, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 5.2 मीटर, ठीक है। आई होप ये सॉल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो x आपके पास आ गया 5 x इज़ इक्वल टू यहाँ पे 5.2 मीटर, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि यहाँ से ये जो शेयर फोर्स है अपना जो साइन चेंज कर रहा है वो 5.2 मीटर पे साइन चेंज कर रहा है। तो अब इस 5.2 के अगेंस्ट मैंने ये मैक्सिमम मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो ये मैक्सिमम मोमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, मैं इसी पेज पे, ये जो क्वेश्चन वाला पेज है, इस पे मैं मोमेंट फिगर हमारी ये है, ठीक है। यहाँ से मैं मोमेंट सिग्मा m इक्वल्स टू 0 करता हूँ, ठीक है। तो सिग्मा मोमेंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अब देखें इस जगह पे हमने मोमेंट लेना है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो हमारे पास एक फोर्स ये है और एक ये, यही दो फोर्सेस हैं, ठीक है। एक तो ये इसका अपना मोमेंट ये वाला आ जाएगा सिंपल m, इसको मैं लिख लेता हूँ जी सिंपल m, और इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम किया हुआ है, तो मैं कहता हूँ जी दिस इज़ नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास एक फोर्स ये है जो कि यहाँ पे मोमेंट क्रिएट कर रही है। तो 10/9 x स्क्वायर इंटू ये डिस्टेंस कितना है x/3, ये ऊपर है हमारे पास। तो 10/9 ये वाला 10/9 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x/3। सो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा 10/9 x स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय x/3। एक ये मूवमेंट हो गया, और दूसरा मूवमेंट है जो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, वो 30 वाला। सो 30 इंटू एक्स, सो एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है 30 इंटू 5.2, सो ये हो जाएगा प्लस 30 इंटू 5.2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करें, तो आप देखेंगे कि सिर्फ m जो है यहाँ पे, अगर आप इसकी इस एक्स स्क्वायर की जगह आप 5.2 पुट करें, इसी तरह यहाँ पे अगर 5.2 पुट करें, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो ओनली अननोन है वो सिर्फ ये एक मोमेंट है, ठीक है। ये एक मोमेंट जो है, ये जब आप इसके लिए इसको सॉल्व करेंगे, ये आप कैलकुलेटर पे ख़ुद कर लें, तो दिस मोमेंट विल बी इक्वल्स टू 104 किलो न्यूटन मीटर। तो ये मोमेंट आपके पास इस तरह से आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 104 किलो न्यूटन मीटर। सो दिस इज़ हाउ कि हमने इनिशियली क्या किया, स्पोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए इस GVL को कन्वर्ट किया पॉइंट लोड में, और हमने ये 30 और 60 दो AY और BY निकाल लिए। सिमिलरली फिर हमने क्या किया, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ की, और हमें ये पता था कि जो हमारी है सेकंड डिग्री कर्व वो बने, सॉरी सेकंड डिग्री कर्व शेयर फोर्स के लिए बनेगी, थर्ड डिग्री कर्व मोमेंट के लिए बनेगी। तो ये शेयर फोर्स के लिए ये हमने वो ड्रॉ किया, और ये 60 नीचे से ऊपर लग रहा था, तो ये दोबारा जाके 0 हो गया। अब आप देखें एक चीज़ कि जहाँ से हमें नहीं पता था कि ये इसको कट कहाँ से करेगा, तो कट करने के लिए हमने इस जो फिगर थी हमारी ऊपर, इसको हमने एट अ डिस्टेंस x कट किया यहाँ पे,
ठीक है। एट अ डिस्टेंस x कट करने के बाद हम इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है कि 20 इंटू एक्स बाई 9 होगा, और फिर हमने इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया और इंटरनल फोर्सेस निकाली, शेयर और मोमेंट, ठीक है। तो शेयर और मोमेंट हमने जब निकाले तो x हमारे पास आ गया 5.2 मीटर, तो इट मीन्स कि ये इसको 5.2 पे कट कर रहा था। तो फिर इस 5.2 के अगेंस्ट हमने मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू निकाल ली, जो कि इस पेज पे है, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आई होप आपको इस प्रॉब्लम की समझ आई होगी। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ आपके लिए। सो दिस वाज प्रॉब्लम 4.7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हेयर वी हैव द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ 4.9। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें स्टेटमेंट क्या है कि ड्रॉ द शेयर एंड मोमेंट डायग्राम्स फॉर बीम्स शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे दिस इज़ ए, ये एक 3 किलो न्यूटन का ऊपर से लोड लग रहा है, ये 5 किलो न्यूटन के यहाँ पे मोमेंट है, और यहाँ पे एक डॉट है, मतलब डॉट मीन के यहाँ पे पिन है, और इसी तरह यहाँ पे भी, ठीक है, पिन सपोर्टेड है ये बीम, ठीक है, पिन सपोर्टेड बीम है, और ये दो पिन्स हैं सी और डी, और यहाँ पे 5 किलो न्यूटन मोमेंट है, और ये बी है, ठीक है। तो इस फिगर के लिए, इस बीम के लिए हमने सबसे पहले बल्कि हमने क्या करना है कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है, लेकिन उससे पहले हमें पता है कि हमने इसकी जो सपोर्ट रिएक्शंस है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलें जी फाइंड आउट करते हैं, और हमें ऑलरेडी पता है कि हम कैसे करते हैं। तो अगेन मैं एक जिसे कहते हैं एक फिगर बनाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे पता है कि दो फोर्सेस हैं, और यहाँ पे एक फोर्स है, और ये मुझे ऑलरेडी पता है कि दिस इज़ ज़ीरो, ठीक है। अब ये चूँकि ज़ीरो है तो मैं फिर सिर्फ इन दो को कंसिडर करता हूँ, दिस इज़ ए वाई, दिस इज़ बी वाई, ठीक है। और ये सेंटर में लग रही है 3 किलो न्यूटन की फोर्स, ठीक है। ये सेंटर में 3 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है। एंड सॉरी माय फोकस इज़ नॉट क्लियर। अच्छा, सो ये 3 किलो न्यूटन की एक फोर्स लग रही है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एक 5 किलो न्यूटन मीटर की एक मूवमेंट भी है, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है ये 3 है, दिस इज़ 1.5, दिस इज़ 1.5, ठीक है, मीटर्स, तीनों मीटर्स में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं अगर यहाँ पे कंसिडर करता हूँ जी सिग्मा m इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो m 0 करने के लिए मेरे पास क्या क्या मोमेंट्स हैं, मैं कहता हूँ जी m एट a इज इक्वल्स टू 0, m मैंने मोमेंट कर दिया एट a इज इक्वल्स टू d, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक मोमेंट क्रिएट होगी, ये तो 3 इंटू दिस डिस्टेंस, तो 3 इंटू 3, ठीक है। और ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो मैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखें कि 3 इंटू 3, ठीक है। और इसी तरह दूसरी कौन सी, एक ये मूवमेंट है, ठीक है, 5 किलो न्यूटन मीटर का, तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो मैं इसको भी प्लस सिंपल 5 लिख लेता हूँ, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास है बी वाई, सो बी वाई ये होगा बी वाई इंटू कंप्लीट डिस्टेंस होल, ये सारे का सारा कितना है 6 मीटर, 1.5, 1.5 एंड 3, तो ये हो जाएगा जी नेगेटिव में, ठीक है, चूँकि ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सो बी वाई इंटू 6 इक्वल टू 0, बी वाई इंटू 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब क्या करते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 3 9 प्लस 5 माइनस 6 बी वाई,
तो ये बी वाई उधर चला जाएगा, 9 और 6 15 इक्वल्स टू 6 बी वाई। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है जी बी वाई, यानी कि 15 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू 2.33 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको भी बता दूं तो ये यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 6, तो ये देखें 2.5 बता रहा है। ऑलराइट, सो इट मीन्स के ये है 2.5, लेकिन बुक में इन्होंने 2.33 किया हुआ है। आई डोंट नो कि कैसे इन्होंने 2.33 किया है। तो आप 2.5 लेके चलें या 2.33 लेके चलें, बात मतलब इतना फ़र्क नहीं है, 2.33 और 0.17 का फ़र्क है। तो मैं लेट से कहता हूँ जी आइदर बी वाई इज इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन। ठीक है, सॉरी 2.5। ठीक है, अब मैंने इसको 2.5 ले लिया। अगर 2.5 आप बुक में देखेंगे उसमें तो वहाँ पे इन्होंने 2.33 लिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये मैंने बुक से देखा 2.33 या आपके स्लाइड से 2.33 और यहाँ पे 2.5 आ रहा है। तो 15 डिवाइडेड बाय 6, 3 into 3 9 plus 5 14, sorry this is not 15, this is 14। so 14 डिवाइडेड बाय 6 अगर मैं करता हूँ तो क्या आता है 14 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी माय मिस्टेक, 2.33। तो ये 2.33 ठीक है। ठीक है, ये नहीं है, ये 14 है। 9 और 5 14, मैंने गलती से 15 कर लिया था। तो दिस इज़ 2.33। ठीक है, दिस इज़ 2.33। अब हमें पता है कि सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, इसको करो तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा जी 3 डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, -3 अपवर्ड प्लस ए वाई, और इसी तरह प्लस 2.33 इक्वल टू 0। तो 3 में से 2.33 निकालो तो ए वाई इक्वल टू 0.67 आता है। ठीक है, सो ए वाई भी आ गया हमारे पास 0.67। ऑल राइट, अब हम क्या करते हैं, एक और फिगर में ड्रा करता हूँ जिस पे नीट एंड क्लीन हो सारी चीज़ें, थोड़ी बड़ी सी। ठीक है, ये है जी यहाँ पे जो लोड लग रहा है या फोर्स है, दैट इज़ 0.67, और इसी तरह यहाँ पे जो लग रहा है दैट इज़ 2.33। और यहाँ पे 3 किलो न्यूटन, और यहाँ पे पिन है, पिन सपोर्ट है, यहाँ पे भी पिन सपोर्ट है, और एक मोमेंट है दैट इज़ 5। ठीक है, 5 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस 1.5 है, ऊपर लिखे हुए डिस्टेंसेस में, यहाँ पे नहीं लिखता। तो दिस इज़ 3, दिस इज़ 3, दिस इज़ 1.5, दिस इज़ 1.5। तो टोटल जो है वो कितना है, वो है हमारे पास 6। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं एक मतलब लाइंस ड्रॉ करता हूँ। ये शेयर की लाइन हो गई मेरी, ये मूवमेंट की लाइन हो गई। ठीक है, तो ये मूवमेंट, अच्छा ये 0 0 है, मतलब ओबियसली ये लाइन जो 0 से स्टार्ट होगी ना, तो 0 0 लिखें या ना लिखें बात एक ही है, लेकिन ये है कि ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो शेयर की जो यूनिट है वो आपको पता है कि किलो न्यूटन, और इसी तरह इसकी है किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा मोमेंट, इसी तरह ये हमारा
शेयर, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ से जो मेरी फोर्स है, जो शेयर अपवर्ड फोर्स लग रही है, दैट इज़ 0.67। तो मैं 0.67 सॉरी ऊपर जाऊँगा 0.67। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 3 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई भी मतलब पॉइंट लोड कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम में वो बताया था कि पॉइंट लोड मतलब अगर ये हमारे पास पॉइंट लोड हो तो जो इसकी डिग्री जो है 0 डिग्री कर्व बनेगी, और इसी तरह मोमेंट की जो है फर्स्ट डिग्री होगी, और इसी तरह यूडीएल हो तो शेयर के लिए फर्स्ट डिग्री और मोमेंट के लिए सेकंड डिग्री, जीवीएल हो तो शेयर के लिए सेकंड डिग्री और मोमेंट के लिए थर्ड डिग्री। तो यहाँ पे पॉइंट लोड है। अब यहाँ पे यहाँ से ऑनवर्ड कोई फोर्स नहीं है, तो ये लाइन यहाँ से सीधी आगे जाएगी, ठीक है, 0.67 तक, 0.67 और ये साथ में 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर। अब क्या है, यहाँ इस पॉइंट पे हमारे पास एक 3 किलो न्यूटन जो है फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। तो 3 आपने पूरा नीचे आना है। अब ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ठीक है। तो 0.67 तो ये कंज्यूम हो गया, रिमेनिंग ये कितना बचा, दिस इज़ 2.33 ये यहाँ तक 2 इधर से नीचे -2.33 बच गया, ठीक है। तो माइनस लिखते वैसे नहीं है, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। वो इसलिए कि 0 से ऑलरेडी बिलो है, नीचे है, तो ये 2.33। अब ये लाइन यहाँ से आगे आप आएँ तो कोई मूवमेंट कोई फोर्स नहीं है, तो सीधा आगे आएंगे आप, और यहाँ से अपवर्ड 2.33 लग रहा है, तो ये इधर जाके ये मीट कर लेगा अपवर्ड, और ये 0 हो गई शेयर फोर्स हमारी, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव रीजन और ये हमारा नेगेटिव रीजन, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम्स फॉर पॉइंट लोड, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस फिगर, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो कि इसके पैरेलल भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसी तरह इधर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये 3 है, ये 1.5, ये 1.5, ठीक है। अब आते हैं जी शेयर फोर्स ड्रॉ करने के लिए, सॉरी मूवमेंट। तो मूवमेंट के लिए हमें पता है कि जहाँ पे हमें पता है कि मूवमेंट शेयर फोर्स मैक्सिमम हो वहाँ पे मूवमेंट 0 होता है, ठीक है। दिस इज़ 0 से स्टार्ट होगा। अब ये एरिया टोटल कितना है 0.67। हमने पीछे जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ शेयर फोर्स यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम का जो एरिया है वो मूवमेंट डायग्राम के इक्वल है, ठीक है। वो हमने फिगर्स भी पढ़ी थी। तो शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया कितना है 0.67 इंटू 3। 0.67 इंटू 3 करें तो कितना आता है, मैं ये आपको करके बताता हूँ। 0.67 इंटू 3, सो दिस इज़ 2.01। अब हमें पता है कि यहाँ पे 0 डिग्री कर्व थी, तो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री होगी, तो ये आ जाएगी जी फर्स्ट डिग्री कर्व, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट डिग्री और ये है 2.01, ठीक है। अब यहाँ तक हमने लाइन जो है शेयर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो फाइंड आउट कर ली है। अब 2.01 है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने इस फिगर के लिए जो कि यहाँ ये है 1.5 मीटर, ये भी है 1.5 मीटर, ठीक है। अब हमने ये इस फिगर के लिए शेयर फोर्स डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड है, नेगेटिव है, एक बात ये आपने याद रखनी है, नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा 1.5 इंटू मतलब 2.33 इसका मैग्नीट्यूड है 2.33 और डिस्टेंस कितना है
2.3 थी ये वाला मैग्नीट्यूड, और 1.5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ जी 2.33 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। तो अब ये देखें, दिस इज 3.495। अब 3.49 कंसिडर कर लें। 3.49 में से अगर आप, ये 3.49 सारा नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ बना हुआ है ना, और इसमें से अगर आप ये ऊपर वाला है कितने 2.01 ये वाला, ठीक है, अगर आप ये इसमें से माइनस करें तो -2.01, तो ये कितना आता है 1.485। तो लेट्स से मैं कहता हूँ जी 1.49, थर्ड डिजिट में नहीं जाते। तो ये यहाँ से अगर इन लाइंस को भी एक्सटेंड कर दूँ मैं, तो 1.49, ठीक है। तो ये मेरी जो लाइन है ये यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ से यहाँ, और 1.49 पे, सॉरी ये जो है ना, ये आपने इसको, ये जो लाइन मैंने अभी लगाई है इसको कंसिडर नहीं करना, ये यहाँ तक, ये लाइन मेरी ट्रायंगुलर ऊपर से नीचे आई। चूँकि 2.01 पॉजिटिव था और 3.49 जो था वो नेगेटिव था, तो 2.33 पॉजिटिव वाला पोर्शन इधर ही रह गया। रिमेनिंग जो नेगेटिव था 3.49 में से 2.1 निकाला तो वो ऊपर रह गया, रिमेनिंग नेगेटिव हमारा नीचे आ गया ये। तो रिमेनिंग नेगेटिव वो मैंने कैलकुलेटर पे अभी 1.485 या 49 कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो दिस वाज द मोमेंट फॉर दिस फिगर। अब आप आए इस फिगर के लिए, तो यहाँ पे भी हमारा कितना है जी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2.33 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो 2.33 मल्टीप्लाई बाय 1.5 आप करें, लेकिन उससे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपके पास 5 किलो न्यूटन का यहाँ पे मोमेंट है, ठीक है, 5 किलो न्यूटन का मोमेंट है, और यहाँ पे 1.49 है नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो आप क्या करेंगे कि 5 माइनस 1.49, ठीक है। तो देखें ये क्या आता है 3.51। इट मीन्स के हमारा डायरेक्ट यहाँ पे मूवमेंट लग रहा है, तो 3.51 हमने ऊपर जाना है, ठीक है, ये इधर। अब ये जो मैग्नीट्यूड है दिस इज 3.51, ये मतलब यहाँ तक हम पहुँच आए हैं, ठीक है। वो जो 5 मूवमेंट उसमें ऐड हुआ है, तो 1.49 माइनस 5 आप करें तो 3.51 रह जाता है, तो वो 3.51 चूँकि पॉजिटिव है तो आप ऊपर चले गए, ठीक है। अब आप इस फिगर के लिए जो है शेयर मूवमेंट ड्रा करेंगे, वो कैसे कि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है आपके पास 1.5 इंटू 2.33। सो 2.33 इंटू 1.5 करें, 2.33 इंटू 1.5, सॉरी दिस इज 3.49, ठीक है। अब ये 3.49 आ गया आपके पास, ठीक है, 3.49, और ये है कितना 3.51, मतलब वही जो मैंने यहाँ पे 485 एज्यूम किया था और यहाँ पे, तो वो उसी वजह से, यानी कि ऑलमोस्ट दिस इज इक्वल 3.495 और 3.51, वो जो पॉइंट्स की वजह से इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ है, तो ऑलमोस्ट दिस इज इक्वल। तो ये ऊपर से नीचे आएगा, चूँकि ये नेगेटिव है तो यहाँ से मूवमेंट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, तो ये आके ज़ीरो हो गया। तो ये मेरा मूवमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है इस सारे रीजन में, इस सारे रीजन में यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, ये छोटा सा रीजन, और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से शेड भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू ड्रॉ मोमेंट डायग्राम फॉर बीम्स, ठीक है। और बाकी मैं आपको इंशाल्लाह स्लाइड्स से दिखाता हूँ प्रॉब्लम्स कि कौन कौन से हमने कर लिए हैं, कौन कौन से आपने करने हैं। सो अब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप एक टाइम मुझे स्पेसिफाई करके बताएं, फिर हम उसमें इंशाल्लाह इसको फर्दर डिस्कस करते हैं।